اگر یہ تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں تب پڑھانا سکھایا ہے؟ آپ کے یہاں تو سچویشن یہ ہے، ٹیوشن مس نہیں ہونا چاہیے، چاہے قرآن مقدس کا سیکھنا مس بھلے ہو جائے، العیاذ باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری وہ بہنیں جن کے گھروں کے اندر مال کی فراوانی ہے اور دولت کی ریل پیل ہے، وہ کوئی ایسا گناہ کا کام اور کوئی ایسی چیز جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو اسے چھوڑتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اب تو شادیوں کی تقاریب کے اندر غزل نائٹ شروع ہو گئی، اب شادیوں کی تقاریب کے اندر باقاعدہ ڈانس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور نکاح کے دن لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن اور اس کے دوست اور سہیلیاں ڈانس کرتے ہیں اور گانے اور میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی سب اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک دن حساب کا موجود ہے، جب پل پل کا حساب اللہ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایکسکیوز پیش کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب منہ نہیں کھلے گا، زبان نہیں چلے گی۔ مولا یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج قیامت کے دن بندہ چپ رہے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان ہاتھوں اور پیروں سے یہ کام کیا ہے۔ کون ہے اس وقت اس مصیبت سے چھڑانے والا؟ اے خواتین اسلام، چند لمحوں کی لذت کے لیے شوہر کے لاکھوں روپے کو برباد کر دینا اور گناہوں کو فروغ دینا، ایک شادی کی تقریب، ایک شادی کے لیے 10 تقاریب منعقد کرنا اور غریبوں کے دلوں پر آرے چلانا اور موج مستی کر کے یہ سمجھنا کہ دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم اپنی مالداری کا روب جھاڑ دیں گے، یہ سوائے دنیا اور آخرت میں تباہی کو دعوت دینے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات بھی نظر آتی ہے، میلاد شریف بھی ہو رہی ہے، آج میلاد شریف کی محفل، دوسرے دن میوزک، تیسرے دن غزل، چوتھے دن ڈانڈیا، 5ویں دن کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، جو گناہوں کو چھوڑ دے گا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آج محفلیں بھی ہو رہی ہیں، ڈانڈیے بھی ہو رہے ہیں، ختم شریف بھی چل رہا ہے، ڈانڈیے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں۔ یاد رکھیں اس قسم کے فنکشنز، اس قسم کی تقاریب، اس قسم کی شادیاں جس کے اندر لاکھوں کے قرض کے اندر شوہر ڈوب جائے اور صرف دنیا پر روب و دبدبے کے لیے یہ سارا کام کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی کی جائے، ایسی شادیوں میں اللہ عز و جل برکت نہیں رکھتا۔ لمیٹیشن میں کرو، ضرورت کے مطابق کرو، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ 23 ریسیشن کا بڑا عظیم سال ہوگا، بڑا خطرناک سال ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں چولہے بھی جلتے دکھائی نہیں دیتے، اللہ رحم و کرم فرمائے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے مولانا کما کر اگر اپنے پیچھے خرچ نہ کریں تو فائدہ کیا؟ میں کب کہتا ہوں کہ آپ خرچ مت کرو؟ کرو خرچ، جائز کاموں میں خرچ کرو، ناجائز کاموں میں نہیں، حرام کاموں میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں، اس لیے کہ رزق تمہارا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ کرو گے تو اللہ دونوں جہاں کا سکون عطا فرمائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا ماؤں کے حوالے سے
मां का बड़ा अजीम रोल होता है, मां का बड़ा अजीम किरदार होता है। आप देखें बहुत सारी हमारी माएं ऐसी भी हैं जो एज अ सिंगल पेरेंट तन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बेवा होने की वजह से या मुतल्लका होने की वजह से। और ऐसी बहुत सारी माएं हैं जो बेवगी के दाग की बुनियाद पर या मुतल्लका होने की बुनियाद पर रास्ते से हट जाती हैं और ये एक्सक्यूज पेश करती हैं, क्या करें बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तारीख में ज्यादातर बड़े अफराद आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बचपन ही में यतीम कर दिया था, लेकिन वो बेवा माओं ने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि दुनिया का उन्हें ताजदार बना दिया। हजरत इमाम बुखारी को देखें, हजरत इमाम शाफई को देखें, जिंदगी का मुताला करें। खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद विलादत से पहले इस दारे फानी से कुछ कर गए। वालिदा बचपन ही के अंदर 6 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने करम से इस तरीके से पाला कि दुनिया का ताजदार बना दिया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। हजरत इमाम मालिक को देखो, किस तरीके से उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश फरमाई। आइए मुझे महबूब इलाही याद आ रहे हैं, उनकी मां ने उनकी किस तरीके से परवरिश फरमाई। अल्लाहु अकबर। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद दागे मुफारिकत दे गए थे। मां बहुत बड़ी आबिदा थी, बहुत बड़ी जाहिदा थी, बहुत बड़ी मुत्तकिया थी, बहुत बड़ी आमिला थी, बहुत अल्लाह से डरने वाली बंदी थी। अल्लाहु अकबर। अपने बच्चे को पालती हैं और जानते हैं आप, जब घर में कभी खाने को कुछ न होता और महबूब इलाही अपनी मां से कहते, मां खाने के लिए कुछ अता फरमा, तो मां जवाब में फरमाती, बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, सब्र कर लो, अल्लाह करीम है, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे शिकम को रब्बे कदीर जल्ल जलालो सुकून अता फरमा देगा। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। लेकिन कभी कदम फिसले नहीं, उस बच्चे की परवरिश के लिए कोई गलत काम नहीं किया, ऐसी कोई चीज उन्होंने इख्तियार नहीं फरमाई जिसकी बुनियाद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की नाराजगी को मोलने का मामला हो। वो भी सिंगल पेरेंट थी, वो भी तन्हा अपने बच्चे को पाल रही थी। एक मर्तबा जब मां शदीद बीमार हुई और हजरत महबूब इलाही अपनी मां के कदमों में बैठे हुए थे, मां ने पूछा, बेटे क्या नए महीने का चांद निकल आया? हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमान ने अर्ज किया, हाँ मां, नए महीने का चांद निकल आया है। तो महबूब इलाही की वालिदा फरमाती हैं, बेटे आइंदा महीने का चांद देखना शायद मुझे नसीब न हो। इतना सुनना था। हजरत महबूब इलाही तड़प उठे, गरीब थे, एक मां ही की ममता थी जो अपने बेटे के लिए सबसे बड़ी जाए पनाह और सुकून का जरिया थी। जब मां ने यह कहा तो महसूस कर लिया कि अब मेरी मां की जिंदगी ज्यादा नहीं। रोने लगे, गिरियोजारी करने लगे, यहां तक कि बेहोश हो गए। फिर होश आया तो मां से पूछते हैं, मेरी मां, गौर से सुनिएगा, मेरी मां तेरे जुमलों से लग रहा है कि अब तो दागे मुफारिकत दे जाएगी। मां जरा मुझे ये बता, अपने इस गरीब बेकस बेटे को किसके हवाले करके जा रही है, किसके सुपुर्द करके जा रही है? मां ने जवाब में कहा, बेटे आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, कल मैं इसका तुझे जवाब दूंगी। जा आज की रात एक बुजुर्ग की तरफ उनको भेज दिया और फरमाया, रात वहां गुजार करके आ। सिचुएशन ऐसी थी कि अब रू निकलेगी तब रू निकलेगी। हजरत महबूब इलाही तशरीफ ले गए। सुबह को महबूब इलाही की वालिदा की कनीज आती हैं और कहती हैं, वालिदा ने आपको याद फरमाया है। तो आपने पूछा, वालिदा अभी तक बकायदे हयात ही है ना? कहा हाँ, इसीलिए तो याद फरमाई। तशरीफ ले गए। मां ने फरमाया, बेटे निजामुद्दीन, एक सवाल कल तूने मुझसे किया था कि मां मुझ जैसे गरीब को, बेसहारा को किसके सुपुर्द करके जा रही है? तो बेटा मैंने तुझसे वादा किया था कि इसका जवाब कल तुझे दूंगी। आ बेटे खड़े हो जा,
उस चीज का जवाब मैं तुझे देती हूं। और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे निजामुद्दीन को मैं तेरे सुपुर्द कर रही हूं, बस ये कहना था। और उसके बाद उनकी मां की रूह परवाज कर गई। ये माएं थी, ये माएं थी जिनका अपने रब पर इतना कामिल भरोसा था, अपने रब पर इतना तवक्कुल था। हजरत महबूब इलाही इस जुमले के बारे में फरमाते हैं, अगर मेरी मां मुझे दुनिया की सारी दौलतें देकर जाती तो मुझे इतनी खुशी न होती जितनी मेरी मां के इस जुमले से मुझे खुशी हुई कि मेरी मां ने मेरे मौला के सुपुर्द कर दिया मुझे। आप अंदाजा लगाएं, ये मां थी सिंगल मदर, सिंगल मदर। इमाम बुखारी की जिंदगी देखो, गुर्बत का आलम है, किताब नहीं। जानते हैं मां के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने बच्चे को लिखने के लिए कोई चीज दे सके, लेकिन मां ने कहा, बेटे तुम इल्म हासिल करो। 2 साल की उम्र में लेकर मक्का आ गई, बच्चे को इल्म हासिल करने में लगा दिया। और इमाम बुखारी की पोजीशन यह थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पोजीशन यह थी, अल्लाह अकबर, कि हड्डियों पर, चमड़ों पर जो कुछ उस्ताद कहते थे उसे लिख लिया करते थे। इस तरह से मां ने परवरिश की है। सिंगल मदर की जिंदगियां उठा करके देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई। लेकिन आज कदम फिसल रहे हैं, बल्कि अल्लाह रहम व करम फरमाए, अब तो सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि अल अयाज़ु बिल्लाह, शौहर बीवी से बेपरवाह हो गया और बीवी शौहर से बेपरवाह हो गई। बीवी को जहां जाना हो वो जाए, शौहर को जहां जाना हो वहां जाए, बच्चों को काम वालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो, वरना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अजाब से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, न बचा सकता है। माएं अपना कलीदी रोल प्ले करें, माएं अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। अब करना क्या है, किस तरीके से परवरिश करनी है? तो कुरान की रोशनी में एक चीज को अपने बच्चों के लिए लाजिम कर दो, सिखाओ अपने बच्चों को। और वो औरतें, वो बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी चाहिए कि वो हया को अपना जेवर बनाएं, बेहया बन करके न जाएं और न बेहयाई में जिंदगी गुजारें। याद रखें, धोखों में आने से बचो, ईमान बेचने से बचो, ईमान फरोख्त करने से बचो, दीन पर साबित कदम रहो। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा कोई भला चाहने वाला है, अल्लाह है और उसकी अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मोहब्बत के झांसे में आकर कोई घर छोड़ रहा है, कोई माँ बाप छोड़ रहा है, कोई रिश्तेदार छोड़ रहा है, कोई मजहब छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फिर चंद दिनों के बाद सिवाय सर पर हाथ रखकर रोने की और कोई चीज नसीब नहीं होती। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबसे ज्यादा मेहरबान है और इंसानों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान है। करना क्या है? अगर आप समझती हो मुसीबतों का माहौल है, परेशानियों का माहौल है, तकालीफ का माहौल है, तो कुरान ने पहले ही उसका इलाज बता दिया। मैं आज आने वाली खवातीन को 6 चीजों के सिलसिले में अर्ज करूंगा। 6 चीजों पर प्रैक्टिस करो, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इन 6 बातों को दिल में जगा दो। नंबर 1, हर मां अपनी बच्ची को और खुद सूरह वाक़या की तालीम दे और सूरह वाक़या की तिलावत अपने घर में कंपलसरी करे, रोजाना बिला नागा। कोई बच्ची ऐसी न हो तो सूरह वाक़या के हिफ्ज़ से महरूम हो। सूरह वाक़या याद कराओ और उसे पढ़ने की ताकीद करो, उसको आदी बनाओ। नंबर 2, सूरह नूर का तर्जमा, उसकी तफसीर अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी।